આ પાછળનું મિનિમાઇઝ કરી દઉં ને એડમિટ ચાલુ થઈ ગયું ને હવે સિક્યોરિટી ધીમેથી કરો ત્યાં ભલે વેટ કરતા પાર્ટિસિપન્ટ્સ નહીં સિક્યોરિટી એનેબલ વેઇટિંગ રૂમ બંધ હવે જે છેલ્લા હોય ને એડમિટ ઓલ હવે જે આવશે એ ઓટોમેટિક એન્ટર થશે ઓકે એટલે આપણે આ રુદા કરવું જ પડે બધામાં લગભગ સેટિંગ ધીમે ધીમે હું હા એ વાંધો નહીં ઓહો અને સાંભળ પહેલા મ્યુટ કરો Now when you speak અહીંયા તમે આવવા જોઈએ સ્પીકર વ્યૂ પણ નથી આવતું બેસ્ટ ઇઝ ગેલેરી મ્યુટ કર What?
Good evening, ma'am. Good evening, everybody. ma'am. Good afternoon all. It's not good evening. हैप्पी बर्थडे बॉय बाजू में खड़े हैं हमारी. Oh, happy birthday, Kushan. Happy birthday, sir. Happy birthday. Happy birthday, sir. Many happy returns of the day. Thank you so much. अभी रुको, हम लोग केक काट रहे हैं. Happy birthday, sir. Thank you, Kavya. Happy birthday, Happy birthday, sir. Thank you, Happy birthday. thank you, Happy birthday. thank you. Happy birthday, sir. સર Thank you. ન્યૂ Happy birthday, sir. જો જે બોલે છે ને થેન્ક યુ યુગ એ હા અંડરલાઈન થાય કઈક કઈક તો થાય અને એમને બી Happy birthday, sir. થેન્ક યુ. चलो केक काटते हैं. अभी सब आ गए. કેમેરા ઓન કરી દે બધા. हाँ બધા કેમેરા ઓન કરી દે પોતાનો. ऑन दी कैमरा. We'll take a group selfie. જો જો આ ધન આવી ગયો કેક નું નામ લઈને. એ ક્યાંક બહારથી આવતો લાગે છે. અનુજ છે. ના ધન હતો ને, એ તો કારમાં હતો. અનુજ કારમાં છે. ક્યાં ફરે છે અનુજ? સર હું અત્યારે બહાર આવ્યો છું, આઉટ ઓફ સ્ટેશન છું. અરે વાહ, ક્યાં ઉપડ્યા ફરવા? સર એકચ્યુઅલી મારા મમ્મીના જે બા છે ને એમનું 12મું હતું એટલે ત્યાંથી પાછા રિટર્ન કર્યો છે. અચ્છા અચ્છા ઓકે. ક્યાં છે નિર્મિત, યુગ, ધન, કાવ્ય અને નંદિશ? કેમેરો ક્યાં છે તમારો? Yes, sir. કુશલ સોલંકી ગેમર, તારો ગેમ નો ફોટો બદલી કાઢ. Sir, free fire નો photo છે એનો. એ ગઈકાલે અસાઇનમેન્ટ અને ટેસ્ટ કોણ સબમિટ નથી કરી શક્યું? રેઝ યોર હેન્ડ. મને ખબર પડે કોઈને. કેમ, શું થયું મિત? ગડબડ? સર હું બહાર ગયો તો. અચ્છા, તો મોબાઈલ લઈને બહાર જવાનું, મોબાઈલ થી પતાવી દેવાનું. અરે સર મોબાઈલ ઘરે હતો, હું બહાર ગયો તો. સારું.
So you can see Rohit sir at the back. આ રહ્યા. You can see. Yes, ma'am. એટલે Okay. અહીંયા આવી જાવ એમ. હા બસ. હા આપણે જ જોઈ શકીએ. હું એ લોકોને કહું છું તમે જોયા રોહિત સર ને. चलो अब केक देख लो एक बार, फिर हम लोग खा लेते हैं. दिख रही है? Yes. Yes. Okay. So we will enjoy it when we are together, maybe in few months. तब तक के लिए सिर्फ देख के जला सकता हूँ मैं तुम लोगों को और बता सकता हूँ कितनी टेस्टी. मैम ने खुद बनाई. मैम इज अ वेरी वेरी गुड बेकर. So one day we will have get to taste it. चलो एक सब आ गए. युग અને કાવ્ય કેમેરા ઓન કરો તો ફોટો લઈએ આપણે બધાનો. ઋત્વા કેમેરા ઓન કર દે ટેમ્પરરીલી, પછી ભલે બંધ કરી દેજો. કુશલ આવી ગયો, નિર્મિત, કાવ્ય. चल हाँ ऋत्वा, હવે નિર્મિત જતો રહ્યો. आओ जाओ. Don't switch the app. By the way, तुमको पता होगा. So happy birthday. Thank you. आप लोग खाली देखो केक को. ओके सब आ गए. मैम आ जाओ. रोहित सर ने बोला रोहित सर. फोटो लेते. बाहर सरखा करो બધા. रोहित एक मिनट आओ ना. जो कुशल કેટલો ડાયો મસ્ત તેલ મેલ લગાવી વાળ ઓળી. યુગ भी આવી ગયો. फोटो पड़ेगा भाई 9th 10th માં पे बोला है. અહીં આવો બસ. ઓકે I am going to take a print screen. ત્રિવેદી નંદીશ મોઢું દેખાય એવું કંઈક કર. હા સરસ. ઓકે 3 2 1 say cheese. ઓકે થઈ ગયો. I am going to save it and I will share it on our WhatsApp group. Save 8th happy birthday. अच्छा reunion हो गया. So full batch together and now I'm going to leave. Thank you so much guys. मैम को cooperate करना, कहीं वो अटक जाए तो guide her and I'm also here. Thank you. Bye. બસ હવે 1 મિનિટ ઉપર રહે. પછી સેજ ખાલી આડું રાખ છે બાળનું, વાંધો નહીં. So once again, good afternoon. और ये कौन है? जूही, त्रिवेदी, नंदिश, युग, धन. कोई दिखाई नहीं दे रहा. Where are you? हाँ, आप બધા ઊંઘતા લાગે છે. नहीं सो रहे हो? कुशल सोलंकी? No. No. And प्रियांक मिस्त्री? कल भी उल्टे ही बैठे थे. फोटो એવું મૂક્યો ને. हाय. मेरे घर पे लाइट नहीं है अभी. मैं कल सर को बोला था मैंने. किसके घर पे लाइट नहीं है? प्रियांक? अरे नहीं मैम, मेरा जहाँ नेट आता है ना वहाँ मैम मम्मी और बहन सो रहे हैं. कौन बोल रहा है? मैं प्रियांक मिस्त्री. हाँ तो वही तो मैं बोल रही हूँ, प्रियांक मिस्त्री. हाँ तुम्ही को मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ. एंड अनुज, धन, हाँ. एंड और कौन बाकी है? काव्य. वेस काव्य? आ गया, काव्य आ गया. वी सॉ ईच अदर अर्लियर. हम मिले हैं सिर्फ प्रांशी, प्रिंसी, मोटू आर्यन, रोल नंबर 7, माय नेबर, कृषा पटेल, ऋत्वा, फिर आर्ची पटेल एंड प्रिंसी. राइट? विल स्टार्ट विथ एसएस टुडे. ठीक है? लेंदी कोर्स. हाउ मेनी चैप्टर्स यू हैव सीन?
देखा है तुमने? कितने चैप्टर्स हैं? टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो? I told you I'll be starting with FOS because Krisha Patel has some problem in FOS, but वो हम next time करते हैं, right? अभी तो एग्जाम है, अभी तुम्हारी हो गई, एग्जाम हो गई? यस मैम हो गई, आज ही थी। ओके, अच्छी रही? नारायण गुरु? Yes, ma'am. ओके, यस मैम। नारायण गुरु में 2 ही है, आरती पटेल भी है। हाँ प्रिंसिपल। ओके फाइन। मैम मैं भी हूँ। कौन मैं? प्रिंसी पता है मुझे। नहीं प्रियांक। प्रियांक भी है, हाँ। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, राइट? અનમ્યુટ કરવાનું अच्छा ऊपर જતો રે, હા ઉપર આવ્યું હવે। તમારે થ્રુઆઉટ ધ લેક્ચર મ્યુટ અનમ્યુટ તમારે નહીં કરવાનું। કારણ કે છે ને આ અહીંથી જતી વખતે આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં મેં મ્યુટ રાખ્યું હતું ને એકદમ સ્ટાર્ટિંગમાં, હા હા પછી આ એ લોકોને હવે શેર સ્ક્રીન કર્યું ને ત્યારે મ્યુટ જ રહી ગયું હતું। હા તો હવે તો ઓન છે। હમણાં જ કર્યું। ક્રિશા, कृषा उल्टी हो गई है। कृषा सुन, या आर्यन तुम जवाब दे दो या निर्मी जवाब दे दो। यू कैन सी द स्क्रीन क्लियरली व्हेन आई एम शेयरिंग? Yes, ma'am. Okay, what Yes, can you ma'am. read? Okay, tell me what you can read over here. Tell me. Ma'am, chapter 1, social तो सारे read living. नहीं करने हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 6. 6. Okay. Now 7 to 12. 7 to 12. 7 to 12. Very good. Very good. And next? 14. 13 to 14 and Okay, revision 13, 1 and 2. 14. 13 Yeah. to 14. Very good. Two. Revision 1 and 2. Right. So we'll start with some nice interesting chapter today. That's your first chapter, socio-religious reform. ठीक है? मैं तो ये 7th ही लेने वाली थी, which is more interesting related to environmental pollution, but we'll continue, we'll take it for the next time. Then there is human resource, which is equally interesting. And history जैसे पसंद है उसके लिए काफी chapters हैं history में. Who all are interested in history? Raise your hand. Princey, Trivedi, Nandish, Krisha, Archie, Rutwa is not interested. ठीक है. So let's move to the first chapter, but before that, one thing. You had done on a very small, very short, in a short manner. We had done UN in the first sem, if you remember. याद है ये? थोड़ा बहुत ही शॉर्ट में किया हुआ था, बहुत छोटा चैप्टर था यूएन पे, and one is related to economic system also. Some part of it we had in first sem. So those who had done the first sem chapters properly, somewhere is going to be very much helpful in your second sem. Clear? So let's start. Tell me first of all the meaning of this heading. Social or socio, you can call it, religious reform. એના અવાજ મારો દસમ
Socio-religious reform. What do you mean by reform? Tell me. Reform. Princey, you can tell me what do you mean by reform? Ma'am, when we form it again. When you, very good. When you form it again, like Nirmit, I can't see you very clearly. हाँ, थोड़े नीचे हो जाओ. Very good. तो what do you mean by revision? ये कौन बताएगा मुझे? Can unmute themselves and tell me. What do you mean by revision? No one. No one is answering. क्यों? Okay, चलो. Rutva will answer. Rutva. Revision. हम जो revision करते रहते हैं ना, मम्मी कहती है To revise something. No, Revise no, no, no. You can see me To do clearly. practice. You can see me clearly. Yeah. Yes, ma'am. Fine. And to do practice of. To do practice, no. देखो, तुम सुनो ये वर्ड को ठीक से. रिवीजन, उसको दो पार्ट में कट कर दो. कैसे कट करोगे? री और विजन. To learn one thing again and again. नो. रिविजन. अब री का मतलब क्या? फिर से. और विजन का मतलब देखना, है ना? विजन. पहली बार जब हम ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, अभी हम रिवाइज नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं और पहली बार समझ रहे हैं. समझ में आया? नाउ आफ्टर वी कंप्लीट दिस चैप्टर, अब नंदिश का ध्यान कहाँ चला गया? बेबी मैम यहाँ पर ये बुक में है. मैम बुक में ही है. बुक नहीं है, नो प्रॉब्लम. बुक में ही है. स्क्रीन है ना? अच्छा, बुक में देख रहे हो. ओके ओके, ठीक है. मुझे लगा मेरा मुंह पसंद नहीं है तुम्हें, है ना? जिसे मेरा मुंह पसंद है वो प्रांशी देख रही है मुझे प्यार से. निर्मित झुक झुक के देख रहा है. आर्यन लेट के देख रहा है. नहीं मैं लेटा नहीं हूँ. ओके फाइन. कृषा हंस रही है और आरसी सुन रही है. अब प्रांशी कहाँ चली गई? सो वंस अगेन, रिवीजन. जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा, या आज अगर हम आधा घंटा इसे रीड करते हैं, धन, राइट? और वो आधे घंटे की पढ़ाई जब लेक्चर के बाद तुम रात को या शाम को बैठते हो टेक्स्ट बुक लेके, एंड यू रीड दैट पार्ट. तो एक बार मैंने रीड किया, तुमने सुना, तुमने भी देखा स्लाइड शो. आप सेकेंड टाइम जब तुम रीड करोगे तो देख के रीड करोगे, आंख बंद करके तो रीड करोगे नहीं, है ना? तो हम इसे क्या कहते हैं? विजन, बट सेकेंड टाइम विजन. तो ये हमारी पढ़ाई पक्की होती जा रही है. सो व्हाट डू वी डू? थर्ड टाइम को रिवीजन नहीं कहेंगे. फिर मम्मी मैं रिवीजन कर रहा हूं, ऐसे नहीं बोलते. फिर 10 बार तो भूल से नहीं करोगे, मुझे भी पता है. तो 10 बार थोड़ी ना री बोलोगे. रेज़ टू 10 विजन ऐसे बोल देना मम्मी को, राइट? मम्मी ऑल्सो विल बी वेरी हैप्पी. ओ माय बेबी डिड 10 टाइम विजन, राइट? बट हम बोलते हैं कॉमन वर्ड रिवीजन. क्लियर? सो शैल वी स्टार्ट? ठीक है, ये थोड़ा शिफ्ट कर दूं. अब दिख रहा है ठीक से सब कुछ? All the words over here you can see clearly, baby. Yes, Of ma'am. you can just raise your hand if very good. Yes, Pranshi. प्रांशी ने तो मस्ट यस बोल दिया. वेरी गुड, थैंक यू प्रांशी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सोशियो मतलब कि सोसाइटी, रिलीजियस मतलब धर्म, एंड रिफॉर्म मतलब जैसे प्रिंसी ने शायद जवाब दिया था ना, प्रिंसी, फॉर्म करना दूसरी बार. तो रिफॉर्म, तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म. अब सोसाइटी में कौन कौन से बदलाव आए? सी, कैन आई चेंज आर्यन थ्रू आउट द लाइफ? नहीं, आर्यन जैसा है वैसा ही रहेगा.
100 साल का बूढ़ा बनेगा तो भी आर्यन की जो आदतें हैं वो वैसी ही रहेगी। जैसे रुत्वा एकदम बूढ़ी बन गई 200 साल की, तो भी रुत्वा का जो नेचर है वो वैसा ही रहेगा। आर यू गेटिंग इट? दिस मीन्स कि हम किसी को, मैं रुत्वा को बदल नहीं सकती, मैं आर्ची को प्रांशी नहीं बना सकती, या प्रांशी को रुत्वा नहीं बनाऊंगी, आर्यन को धन नहीं बनाऊंगी, धन को प्रियांक मिस्त्री नहीं बना सकती। बट हम क्या कर सकते हैं, उसे क्या कर सकते हैं बोलो तो? किसी चीज को हम चेंज नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म मतलब बताओ, अभी पकड़े जाओगे लाइव लेक्चर में, बोलो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्म? तुम अपनी मम्मी को बदल पाए हो लाइफ में अब तक? बदल सकते हो मम्मी को? No. મમ્મી શું કરે છે તું આવું? મમ્મી આવું નહીં કર, મમ્મી ऐसे मत कर, मम्मी तू तो देख, थोड़ा तो मुझे समझने की कोशिश करो। बोलते हैं ऐसे डायलॉग? कौन बोलता है? रेज योर हैंड। नंदिश तो है मेरा प्यारा बच्चा, बहुत शांत लग रहा है। नहीं नंदिश? एक आध बच्चा तो बोलता ही होगा कि मम्मी तू हमें नहीं समझती, राइट? और मम्मी कहेगी पापा तुम मुझे नहीं समझते। दीज आर द डायलॉग्स इन द हाउस विथ ईच अदर। पापा कहेंगे मैं किसी को नहीं समझ पाता घर में, है ना, बेचारे पापा। तो नाउ सी द प्रॉब्लम ओवर हियर, यू कांट चेंज योर मदर कि चलो वो वाली अच्छी है, वो मेरी मम्मी है। अब होगा ऐसे? नो, यू कांट से दैट, यू कांट चेंज, यू कैन ट्रांसफॉर्म। मतलब कि किसी का स्वभाव, किसी की कोई जैसे सम सिस्टम, वी कैन ब्रिंग सम गुडनेस इन इट। तो सोसाइटी कैसी थी हमारी? इंडियन सोसाइटी बहुत साल पहले, 100, 200, 500 साल पहले कैसी थी? ये क्या चल रहा है? No private, nothing, doing very beautiful ma'am, I can understand baby. And what habit Princey? No private chatting. So once again, chalo, goody goody my Princey and all, you are also very beautiful dear. तो प्रिंसी सुनो, और रुत्वा भी सुनेगी और आर्यन भी सुन रहा है कि पहले 400-500 साल पहले सिस्टम क्या थी बेबी? सोसाइटी में कितनी बैकवर्ड सिस्टम, ऐसे यहाँ तक देखो ना, यहाँ तक ऐसे नहीं घूंघट डाल के बैठते थे। फिर आज भी तुम देखोगे कई सारी कम्युनिटीज ऐसी है जहाँ पे यहाँ तक घूंघट होते हैं। देन a girl should not do this and boys are allowed to do anything, you know, this is ये सब बहुत साल पहले थे। आज हम क्या कहते हैं? गर्ल्स एंड बॉयज इक्वल है कि नहीं? गर्ल्स आज होता है ऐसे घर में that girls and boys are treated equally. There is nothing like a boy should be provided more you can say facilities and more freedom. Is nothing like that. यहाँ तक समझ में आया? देखो जैसे समझ में ना आए, you can unmute yourself and ask me to stop and say repeat. इतनी छूट मैं अनम्यूट के लिए दे सकती हूँ। बाकी ये तो मेरी बहुत छोटी सी प्यारी सी बैच है, 15-17 बच्चे हैं यहाँ पे, 17 यस। तो आई कैन कम्युनिकेट विथ ईच एंड एवरी। अब 9th-10th में तो मेरी बैंड बजने वाली है, बराबर? बहुत मजा आएगी 9th-10th में। आई टेल यू टुमारो, डे आफ्टर टुमारो व्हाट हैपेंड। ठीक है, मुझे पूछना तुम लेक्चर में, मैम 9th-10th में आपकी बैंड कैसे बजी? ठीक है। सो सिंपल सोशल, बहुत साल पहले जो पुरानी सिस्टम थी, फिर उसी बहुत साल पहले और भी कहां पे पुरानी सिस्टम चल रही थी सोसाइटी के अलावा? धर्म। जो धर्म रहता है ना, जैसे स्वामीनारायण, ब्राह्मण्स, जैन, क्रिश्चियंस, मौलवीज दैट इज इन मुस्लिम्स, तो ये सारी जगह पे रिफॉर्मेशन आने लगे। पढ़े लिखे लोग जो थे अलग अलग कम्युनिटी के, वो सब बदलाव लेके आए। जैसे आज के जमाने में बदलाव कौन लेके आए हैं हमारी कंट्री में? आंसर? नरेंद्र मोदी। वेरी गुड, हु आंसर्ड? आई थिंक सो आर्यन। यस मैम। जो अनम्यूट हो चुका है, राइट? ओके। तो
किसी के घर में आवाज आ रही है छोटे बच्चे की? हाँ, आर्यन अब म्यूट हुआ. तो you will see very good answer, Narendra Modi, that is called reformation. You can't say कि नरेंद्र मोदी ने इंडिया बदल दिया. इंडिया तो वही है, इंडिया की बॉर्डर भी वही है, इंडिया के गांव भी वही है जो 1000 साल पहले थे, स्टेट्स भी वही है, खाली थोड़े नाम बदल दिए, राइट? बट he brought reformation, he brought transformation, right? That is what we are going to study over here. Clear up till your meaning of this heading? समझ में आ रहा है? मुंडी हिला दो कि ना यहाँ. ओके, ठीक है, थैंक यू. Or if you don't want to unmute yourself, you can raise your hand. कोई डाउट हो तो बोल देना मुझे, ठीक है? So let's start. In the 19th century, अब 19th century मतलब कौन सा साल बोलोगे? बताओ. 1800 या 1700? मैम 1800. वेरी गुड. 20 नहीं ना? 2000 नहीं ना? पक्का? अभी No, कौन ma'am. सी सेंचुरी चल रही है? मैम 21st. वेरी गुड. मतलब कि अभी 2021 आएगा, 2020 कोविड टाइम, हिस्ट्री मेकिंग ईयर ऑफ द वर्ल्ड, राइट? 2020. यस मैम. तुम बूढ़े हो जाओगे तो भी नेक्स्ट जनरेशन को 2020 की स्टोरी बताते जाओगे. हमारे टाइम में ऐसे होता था, नहीं? और कुछ ऐसा हुआ था. सो दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री. हिस्ट्री मतलब समथिंग दैट हैज नेवर हैपेंड बिफोर, दैट्स हैपनिंग, दैट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम, समथिंग वेरी, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 हिस्ट्री बना, जो नेक्स्ट ईयर तुम डिटेल में पढ़ोगे. अगर हमारी बुक्स नहीं बदली तो जो धन की बहन ने पढ़ा था, जो काफी यहाँ पे है 2-3 प्रियांक मिस्त्री के बड़े बड़े भाई बहन जो पढ़ के गए, वही एसएस में तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ. बट अगर 9th में हिस्ट्री की बुक बदल गई तो शायद वर्ल्ड वॉर 1 और 2 तुम नहीं पढ़ोगे. समझ में आ रहा है? सो दैट इज हिस्ट्री. क्योंकि हर साल वर्ल्ड वॉर नहीं होता. तुम हर साल अगर 8th में रहोगे तो तुमने हिस्ट्री क्रिएट की. 10 साल तक 8th में ही रहोगे तो हिस्ट्री. लेकिन हर साल नए साल में जाओगे तो दैट इज वेरी कॉमन. वो तो सब बच्चे हर साल नए एक क्लास आगे बढ़ते हैं, तो दैट इज नॉट क्रिएटिंग हिस्ट्री. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो 19th century मतलब 1800 to 1899, that is called 19th century. Now 19th century, in 19th century Indian society was infested. What is infested? Who will tell me? Okay, in मतलब क्या? अंदर या बाहर? अंदर. वेरी गुड. यहाँ पे तो सिर्फ आर्यन जवाब दे रहा है. अंदर. वेरी गुड. और कौन बोला? मैम त्रिवेदी नंदीश. त्रिवेदी नंदेश. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, ये कुशल सोलंकी नहीं दिखाई दे रहा, काव्य, युग, रोल नंबर 1, ये सब कहीं पे छिप गए. जूही, यस. सो जूही, अब इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर, तो व्हाट डू यू मीन बाय इनफेस्टेड? कौन बताएगा मुझे? कुशल सोलंकी बता पाएगा? ओके, इंजेक्शन मतलब Who's this? Who's this? ये किसने ये काम किया स्क्रीन पे? I know how to erase it. ये मुझे पता है इरेज करना, बट nobody will do this act चालू क्लास में. अभी देखो फेस टू फेस पता चलेगा कामिनी मैम कितनी स्ट्रिक्ट है ना? वीडियो लेक्चर वो भेजते थे ना यूट्यूब वाला, उसमें तो मैं स्ट्रिक्ट नहीं थी, बहुत लविंग थी. लाइव लेक्चर में मैं एकदम मस्त गर्म दिमाग हो जाती हूँ. डरना मत हो कभी कभी, समटाइम. तो इंजेक्शन मतलब तुम्हारे बॉडी में से बाहर निकल रहा है या अंदर जा रहा है? अंदर. वेरी गुड निर्मित. अंदर जा रहा है. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड गर्ल्स, वेरी गुड ऑल दोज हु हैव आंसर्ड. नाउ सेकंड, तो जब भी इंजेक्टेड, इन्फेस्टेड ऐसा वर्ड आए मतलब किसी चीज का अंदर आना, तो यहाँ पे इंडियन सोसाइटी वॉज
1 minute. Okay, no problem. You roll number 1, no problem, dear. It's okay. It's okay, dear. मतलब मुझे ऐसे बार बार गुस्सा नहीं आता यू, तो यू नीड नॉट वरी. और मैं थप्पड़ तो मार नहीं पाऊंगी यहाँ से दूर से, ठीक है ना. देखो जैसे तुम लोग केक नहीं खा पाए ना, सिर्फ हमने खाई. यू कैन सी द केक ओवर योर. मस्त मस्त आज तो बनी है चॉकलेट केक. अब मुंह में पानी लाके बैठे रहो. फिर जब हम मिलेंगे तब मैं बहुत सारी बना के ले आऊंगी फॉर माई 8 क्यूटी बच्चास. राइट. सो इंडियन सोसाइटी वॉज इन्फेस्टेड, मतलब इंडियन सोसाइटी इतनी बैकवर्ड थी कि उसमें इतने सारे सोशल इविल्स थे. सोसाइटी में इतनी सारी बुरी चीजें एंट्री ले चुकी थी. इन्फेस्टेड मतलब ऑलरेडी एंट्री वॉज टेकन in our Indian society by these evils, like superstition. Superstition, who will tell me superstition? Ma'am, What? can Answer I? done. Yes, ma'am. Ma'am, something that doesn't make sense. जैसे कि कांच फूटना मतलब शुभ अशुभ. Ma'am, Very good or bad? हाँ, very good. Superstition, पुरानी मान्यता जो हम कहते हैं ना, right? Yes, ma'am. तो लाइक कितनों के घर में ये कई बार ऐसे बोला जाता है, अरे किसी ने हमें पूछ लिया बाहर जाते हुए, कहाँ जा रहे हो, अब मेरा काम नहीं होगा. हाँ, धन. फिर और किसके यहाँ? ओके, जूही. क्या मैम? फिर और किसके यहाँ ये हुआ? ओके, यू ग्रेज द हैंड. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस. तो नाउ मेरे यहाँ भी यही होता था. एंड एक्चुअली इट सो हैपेंड कि आई ऑल्सो स्टार्टेड. ओके, आर्यन ऑल्सो रेज हैंड. तो अब सी इट सो हैपेंड कि मैं भी ये बिलीव करना मैंने स्टार्ट कर दिया. क्या बिलीव करना स्टार्ट किया? यू कैन लिसन क्लियरली बेबीज. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी आज के दिन पूछती रहूंगी. Yes, ma'am. ओके. तो आई यूज्ड टू बिलीव कि कोई अगर मैं बाहर जा रही हूँ और किसी ने मुझे पूछ लिया दैट भाई कहाँ जा रहे हो, तो आई यूज्ड टू गेट इरिटेटेड. देयर वाज ऑल दिस, क्यों पूछते रहते हैं ये लोग, इनको मैनर्स ही नहीं. अब देखो मेरा काम नहीं होगा. दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू जस्ट थिंक. राइट. फिर एक दिन मैंने बोला कि मैं तो बच्चों को क्या पढ़ाती हूँ एसएस में कि ये सुपरस्टिशन है, और मैं क्या कर रही हूँ, मैं फॉलो कर रही हूँ. इसका मतलब कि मेरा पढ़ाना तो 0 हो गया. देन वन डे विथ स्ट्रॉन्ग माइंड एंड स्ट्रॉन्ग हार्ट व्हाट आई डिड, किसी ने वापस मुझे बिल्डिंग में पूछा, कामिनी बेन कहाँ जाओ छो? एंड कामिनी मैम ने कहा ओके घूम के आऊंगी, बाद में बताऊंगी मैं कहाँ घूम के आई. राइट. आई जस्ट गेव अ बिग स्माइल. I went and I said, wow, आज तो मेरा क्या काम मस्त हुआ. Right? And actually it happened nicely. Why? Tell me. क्यों उस दिन मेरा काम मस्त हो गया? Ma'am, cause you are willing to do it good. Very good. Positivity किसी ने मुझे, I think so, क्रिशा या आरसी ने जवाब दिया शायद. मैम मैंने दिया. हाँ. फिर धन कुछ बोल रहा था. Yes, ma'am. Ma'am, because you were willing to do it good that day. वेरी गुड. मैंने दिमाग से वो नेगेटिविटी निकाल दी. मैंने दिमाग से वो सोच ही निकाल दी कि किसी के पूछने पे बुरा होता है. ठीक है. एक दिन बिल्ली रास्ता काट गई. मैंने रोहित सर को बोला ना अबे आज तो घूमने नहीं जाएंगे. मैं तो लॉस में गई. देखो घर में बैठ के लॉस में गई ना. मेरा शॉपिंग नहीं हुआ उस दिन, नहीं तो मैं कितनी शॉपिंग करती उस दिन. फिर दूसरी बार बिल्ली रास्ता काट गई तो मैं 2 मॉल में गई, बहुत सारी शॉपिंग की. सो दिस आर ऑल ओवर योर. इट्स नथिंग, इट्स नॉट अ रियलिटी. इट्स जस्ट दैट आवर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ने उनके बच्चों को बताया, उन्होंने हमारे माँ बाप को बताया, हमारे माँ बाप ने हमें बताया. देन आई स्टॉप. आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट टू माई डॉटर्स. आई एम नॉट गोइंग टू कैरी इट फॉरवर्ड एंड आई एम नॉट गिव इट इवन टू माई डियर 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 चिल्ड्रन. राइट. मतलब जो ये 200, 500, 1000 बच्चे मेरे हैं ना, इतने सारे, पास्ट एंड करंट एंड फ्यूचर, तो इन बच्चों तक भी ये सुपरस्टिशियस बिलीफ नहीं पहुंचानी है. सो इट इज वी हैव टू कम आउट ऑफ इट. और ये कौन बाहर लेके आया?
ये सारी खराबी किसने निकाल दी? लाइक दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, बहुत सारे हमने राजा राम मोहन रॉय का किया था फर्स्ट सेम में, इफ यू रिमेम्बर अ बिट ऑफ, थोड़ा बहुत Yes, ना ma'am. होगा। अभी क्या फर्स्ट सेम क्यों याद करिए, वो तो दूर की बात हो गई नहीं। सो इलिटरेसी, अब तुम लोग क्यों पढ़ाई लिखाई करते हो? एक तो पैसे कमाने के लिए, नहीं तो मम्मी को लगेगा हाय हमारी कमाई बच्चे खा जाएंगे, तो चलो इनको पढ़ा लो, थोड़ा बहुत कमा लेंगे अपने लिए, है ना नंदिश? तो इलिटरेसी, क्या मैम? इलिटरेसी हम लोग माँ बाप क्यों बच्चों को पढ़ाते हैं? ताकि ये सुपरस्टिशन से बाहर आ जाए, इवन सोशल कस्टम हम फॉलो ना करें, कास्ट सिस्टम हम फॉलो ना करें। कास्ट सिस्टम मतलब ओ यू आर ब्राह्मण, आई एम जैन, दे आर क्रिश्चियन, वो मुस्लिम, वो हरिजन, इनसे हमें बात नहीं करनी है। आई विल बी ओनली विथ माई कम्युनिटी पीपल, आई विल हैव रिलेशन विथ माई पीपल ऑफ माई ओन कास्ट, तो दैट इज रॉन्ग। तो पढ़ाई के हमने पढ़ाई लेना शुरू की तो लिटरेसी निकलने लगी। इग्नोरेंस मुझे कौन बताएगा? मैम कैन आई? या नो हम मैम क्या तो बोलेंगे, चलो इंग्लिश बीच में पढ़ा लूंगी, ग्रामर बीच बीच में, यस तो तुम वो ध्यान रखना। कैन आई हम नहीं बोलेंगे क्योंकि तुम्हारे मुंह में जुबान है यस मैम। तो कैन वर्ड यूज नहीं करेंगे। हम कहते हैं मैम कैन आई कम इन, नो रॉन्ग। हमारे दो पैर हैं तो हम चल के आ May सकते हैं। I? मे आई, May यस I? मे आई, ओके यू मे कंटिन्यू। मैम व्हाट वाज द क्वेश्चन? हाय माय बेबी, इग्नोरेंस। Sorry ma'am. Ma'am, No to problem. complete a person, to ignore a person completely, ma'am. हाँ नहीं, अब देखो यहीं पे 10 तक के बच्चों को ये जब क्वेश्चन पूछती है ना इग्नोरेंस, तो वो मुझे यही जवाब देते हैं। So that's मैम wrong. किसी को नजरअंदाज करना। नो नो नो, इसीलिए देखो हमने कैसे उसे रिलेट किया। इग्नोरेंस का मतलब इग्नोर। मैं अभी कृषा को इग्नोर कर रही हूँ, वो हैंड रेस कर रही है, वो मुझे बुलाएगी, वो इशारे करेगी, बट आई एम इग्नोरिंग, मैं नहीं देख रही। नो, दैट इज इग्नोरेंस नहीं। इग्नोरेंस मतलब अब समझो दैट मी आई लव इंग्लिश एसएस, आई लाइक टू टीच इंग्लिश एसएस। ग्रामर तो सबसे ज्यादा पसंद है, राइट? अब क्यों पसंद है? क्योंकि मुझे आता है। अच्छा क्यों आता है? क्योंकि मुझे पसंद है, ठीक है ना? मैं सीखती नहीं अगर मुझे पसंद नहीं होता तो। समझ में आ रहा है? तुम वही करोगे, वही सीखोगे जो तुम्हें पसंद है। ना पसंद, जैसे मुझे क्यों साइंस नहीं आता? बिकॉज आई हेट इट। मुझे मैथ्स क्यों आता है? बिकॉज आई लव इट। आर यू गेटिंग इट? तो बट सो योर आई एम लिटरेट, मैं इलिटरेट हूं? नो। हाय हाय, मुंडी हिलाने में भी इतना टाइम। कामिनी मैम इलिटरेट है? नो। नंदिश इलिटरेट है? नो। धन इलिटरेट है? नो। तो कौन इलिटरेट है? कोई नहीं। युग, युग तो मुझे दिखता ही नहीं, पहले दिन में ही पता नहीं कहाँ गायब हो गया। आर्ची, यू आर इलिटरेट? नो। प्रियांक, अरे वाह प्रियांक आ गया, वाह। चलो प्रियांक का मुंह देख लूं। अरे वाह प्रियांक, लाइट आ गई। और क्या इतना झूठ बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे। ये खाना खा रहा था, बोलता है लाइट नहीं है मेरे घर में। नहीं मैम, ओ बाप रे। मैम अभी मैंने लैपटॉप में किया। अच्छा, दांत कौन लेके गया आगे का? शिवम मिस्त्री? नहीं मैम, मैंने अभी लैपटॉप में कनेक्ट किया इसलिए लाइट आ रही है। हे भगवान, इसको मैं पूछ रहा हूँ तेरा दांत कौन लेके गया, तो बोलता है मैं लैपटॉप में अभी कनेक्ट हुआ। बहराम, चलो कुछ नहीं, मैं खुशल से बात करती हूँ अभी। तो खुशल ऑल्सो इज नॉट इलिटरेट, उसे सब समझ में आ रहा है, जूही को सब समझ में आ रहा है, रुतवा, प्रिंसी, ऑल आर्ची, कृषा, धन। एक दो के नाम, अभी तो 17 बच्चे हैं तो सबके नाम बारी बारी में ले रही हूँ, इसलिए तो मैं बोलती हूँ नेक्स्ट बैच में बैंड बजेगी मेरी। 80-90 स्टूडेंट में किसका नाम लूं और किसका ना लूं, ये गड़बड़ हो जाएगी। काव्य कहाँ चला गया, हो कि नहीं? ओके चलो जाने दो। तो
अब इग्नोरेंस मतलब कि वी ऑल आर लिटरेट, बट आई एम इग्नोरेंट अबाउट केमिस्ट्री। अब तुम बोलोगे मैम फुटबॉल में पता चलता है, मैं क्या कहूंगी, नो, बॉल यहां से वहां उछल रहा है, लोग लात मार रहे हैं, मेरे लिए दिस इज फुटबॉल। बट इफ यू से क्रिकेट, okay, I know. So I am ignorant related to which game? Who will answer? You will answer. Roll number 1. Football. 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 Very good, very good. And but does it mean कि मुझे अगर फुटबॉल के बारे में नहीं पता, कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं इलिटरेट हो गई? No. तो ignorance का मतलब you are literate, but you are not having knowledge of one or two or few particular field. समझ में आ गया? दैट इज इग्नोरेंस। इवन सोशल कस्टम तो पता है कि लड़की बॉर्न होने वाली है तो उसको मार देते हैं, या तो बॉर्न हुई उसके पहले मार देते थे, आजकल भी ये बहुत चल रहा है। एंड इन स्मॉल विलेजेस, डोंट वरी, नॉट इन सिटीज, बिकॉज यहाँ पे लोग लिटरेट भी हैं। हाँ, लिटरेट लोग भी काफी ये काम करते हैं। इवन सोशल कस्टम आज भी फॉलो कर रहे हैं, कास्ट सिस्टम सब फॉलो कर रहे हैं, राइट? So these are various social evil. Okay, I don't have my watch over here in this room. There's no watch. Anybody can tell me? 4:14. 4:14. Okay, we still have time. ठीक है, जैसे 4:25 हो तो मुझे बताना, because I want to give you some information, right? तो कोई भी एक Okay, ma'am. बच्चा ये काम कर लो मेरा। तो अभी देखो, तुम्हारे फर्स्ट बैच को पढ़ाते पढ़ाते पता चला कि मुझे इस रूम में, दिस इज माय स्टडी रूम, माय लेक्चर रूम। तो एक दिन मैं बताऊंगी तुम्हें मेरा लेक्चर रूम। यू कैन सी समथिंग ओवर हियर, रुको, थोड़ा बहुत दिख रहा है, राइट? नो, कुछ ज्यादा तो दिखेगा नहीं। अब दिख रहा है? मैम सिर्फ पीछे का स्पीकर ही दिख रहा है। ओके, यू कैन सी समथिंग। कपबोर्ड। Yes, ma'am. यस, एंड ये जो कांच वाला जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना रूम, कांच वाला जो वो कबर्ड Yes, है, yes. दैट इज लाइब्रेरी, yes. दैट इज माय लाइब्रेरी, राइट? तो वो लाइब्रेरी जब हम लोग यू नो, वन फाइन डे तो ऐसा आएगा ना वर्ल्ड में, वे वी विल बी मीटिंग ईच अदर। वो आर्यन आया था शायद, उसने देखा था मेरे घर पे बहुत टाइम, Yes, ma'am. है ना? मैंने तुम्हें दिखाया था ये रूम। ओके फाइन। तो दिस इज व्हाट इज कि ये जो कंडीशन है विमेन की, इट वाज वर्स्ट इन दिस नैरो माइंडेड सोसाइटी। नैरो माइंडेड मतलब, व्हाट इज नैरो माइंडेड? मैम, may I? हाँ, बोलो बोलो। Ma'am, narrow-minded means the person, ma'am, who is not thinking from each and every side, ma'am. Very who is good. biased towards one side. वेरी गुड, वेरी नाइस वर्ड यू हैव यूज्ड, बायस्ड। बायस्ड मतलब पार्शियल, पार्शियलिटी जैसे मम्मी करती है ना, जैसे सपोज कि यस त्रिवेदी नंदिश, मम्मी इज पार्शियल विद दिस सिस्टर, है ना? क्या करती है? रिश्वा के साथ करती है ना पार्शियलिटी मम्मी, दीदी के Yes. साथ। और क्या करती है? रिश्वा है घर में अभी? हाँ मैम, यहाँ पर। ओके, उसे बोलना लास्ट में आ जाए 4:25 को, 4:25 को वो मैं देखूंगी उसे, राइट? सो कंडीशन ऑफ विमेन मैम बहुत लास्ट ही, में बोला। हाँ बोल प्रियांक मिस्त्री, व्हाट हैपेंड? मैम कुछ नहीं मैम, है कुछ नहीं मैम, ऐसे ही कर रहा था। यू रेज योर हैंड ना, कुछ प्रॉब्लम है प्रियांक? क्या हुआ? Ma'am, he is muted. अच्छा, अब मैं फिर मैम से, मैं मेरे की पॉइंट्स बदल रहा था। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो वेरियस इविल कस्ट, अच्छा, तो विमेन की हालत कैसी थी पहले के जमाने में? वर्स्ट, राइट? बहुत सारे इविल कस्टम्स थे विच आर वाइड स्प्रेड इन आवर सोसाइटी। अपनी बहन को तो नहीं, लेकिन प्रियांक वाज द प्रॉब्लम। कुछ पूछना है? नहीं मैम। अभी वापिस से अगर कुछ पॉपअप हुआ ना मेरे स्क्रीन पे तो तुम्हें मैं निकाल दूंगी, ठीक है? तो वेरियस इविल कस्टम्स ऑफ वाइड स्प्रेड इन आवर सोसाइटी, लाइक दूध पीती। दूध पीती मतलब लड़कियों को दूध नहीं पिलाते थे,
लड़कियों को दूध के ड्रम में डुबो के मार देते थे, राइट? सो अगर पेन और बुक हर बार पास में लेके बैठना तुम लोग, ठीक है ना? सो व्हेन यू, तो बिकॉज इन बिटवीन आई बी टेलिंग यू, अभी घर पे हो, काफी टाइम है, तो सम रिलेटेड, सम शॉर्ट मूवीज और समथिंग आई बी टेलिंग यू, ठीक है? छोटी छोटी कोई डॉक्यूमेंट्री मूवीज है, ऐसा कुछ होगा तो मैं अपने वीडियो सेक्शन में, एक के इंग्लिश ऐसे सेक्शन में डाल दूंगी, एंड आई टेल यू। बट 3 घंटे की मूवी हुई तो थोड़ी ना मैं वहां पे डालूंगी। तो एक मूवी है रिलेटेड टू दिस, लज्जा, राइट इट डाउन, और अगर भूल जाओ मैम तुम आई हैव लोग, सीन। किसने देखी है? मैम मैंने पर आधी आधी देखी है थोड़ी। किसने? मैंने आधी। निर्मित, आर्यन, ओके। तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। जूही समझ में आ रहा है ना बेबी? एंड आर्ची, शांत बैठिए लड़कियां मेरी, ये लड़के ज्यादा हिल रहे हैं यहाँ पे, बदमाश। प्रिंसी, रुतवा, ऑल आर क्लियर? प्रांशी, क्रिशा, ठीक है। तो वेरियस सिविल कस्टम्स ऑफ वाइड स्प्रेड इन अ सोसाइटी लाइक द कस्टम ऑफ दूध पीती, मतलब फीमेल इनफेंटिसाइड, मतलब लड़कियों को, फीमेल मतलब लेडीज नहीं, लेडीज सेक्शन, Ma'am, can you repeat that movie? छोटी लड़कियों को डुबो देना दूध के ड्रम में, देन ऑफ बाय इमर्सिंग अ न्यू बॉर्न गर्ल चाइल्ड इन अ कंटेनर फुल ऑफ मिल्क। फिर सती सिस्टम, मतलब कि हस्बैंड मर जाए तो लेडी क्या बन जाती है? सती। हस्बैंड के साथ, जब हस्बैंड को जलाते हैं ना, मरे हुए हस्बैंड को, जिंदा हस्बैंड को नहीं, तो वाइफ विल सिट एंड शी विल बर्न हरसेल्फ अलोंग विद द हस्बैंड। लेकिन कभी सुना है कि वाइफ के मरने पे हस्बैंड सता हुआ? हुआ कभी हस्बैंड सता? सतो नो मैम। सती हो जाती है लेडीज, सतो नहीं होते लोग। तो दैट इज कॉल्ड very backward mind, that is evil custom, that is illiteracy, that is superstition, कि सब कुछ लेडीज के लिए सारे रूल्स रेगुलेशन, नथिंग फॉर मेन, राइट? फिर डेनियल ऑफ विडो रीमैरिज, अगर हस्बैंड मर जाए तो लेडीज को अलाउड नहीं था कि वो फिर से शादी करे। क्लियर? Due to this Western education, a new awakening began in 19th century to remove the evil custom from the society. फिर आया 1800. 1800 मतलब इस century? Who will answer? Unmute Ma'am, and answer. 19th century. 19th century. मतलब which year? 1800 या Ma'am, 2000? Ma'am, 1800. 100. 1800. 1800. हाँ, 1800 में स्टार्टिंग में वेस्टर्न एजुकेशन, जब इंडियन, बहुत सारे इंडियन लोग लाइक राजा राम मोहन रॉय एंड मेनी अदर, उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन दिया। वेस्टर्न एजुकेशन मतलब इंग्लिश में पढ़ाई लेना शुरू की उन्होंने, तो दे ब्रॉट सम रिफॉर्मेशन। व्हाट इज दिस रिनाइसेंस? मतलब यू कैन कॉल इट रिफॉर्मेशन और यू कैन कॉल इट न्यू अवेकनिंग। जागृति कहते हैं ना। Awake. अब जागृति मम्मी का नाम है तो वो मत डालना यहाँ पे। जागृति मतलब एक अवेकनिंग, आंखें खुल जाना, राइट? टू रिमूव द इविल कस्टम फ्रॉम द सोसाइटी। इंटेंसिव एफर्ट, इंटेंसिव एफर्ट मतलब बहुत ग्रेट, इंटेंसिव मतलब ग्रेट, ग्रेट एफर्ट्स वर मेड टू ब्रिंग इन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। अब ये जो पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने इंग्लिश में एजुकेशन ली थी या लंदन जाके पढ़ाई करके आए थे, व्हाट दे डिड वाज दे डिसाइडेड कि इंडिया जाके हम बहुत सारा बदलाव ले आएंगे। तो इंडिया को बदलना नहीं था, क्या करना था? इंडिया में रिफॉर्मेशन लाने थे, लेकिन इंडिया को चेंज नहीं करना था, जस्ट स्लाइट ट्रांसफॉर्मेशन। एंड राजा राम मोहन रॉय वाज द फर्स्ट अमंग सच रिफॉर्मर्स। तो यहाँ पे हमारे छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, एंड विच आई विल आस्क यू जस्ट फ्रॉम दिस स्मॉल, एक 2 मिनट की ओरल टेस्ट लूंगी। आई जस्ट आस्क द चाइल्ड, मैं कहूंगी चलो त्रिवेदी नंदिश, तो सिर्फ नंदिश अनम्यूट होके जवाब देगा। अगर मैं आर्ची कहती हूँ, कृषा कहती हूँ, या जूही, या निर्मित, रुतवा, प्रांशी, काव्य, राइट, योग, कुशल, जिसका नाम आएगा उसे जवाब देना होगा।
सो दिस विल बी आवर पैटर्न. चलो मैंने धन, आर्यन और प्रियंका नाम नहीं लिया है, उनका भी नाम ले लिया. ठीक है, तो यू विल दैट टाइम अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू विल हैव टू आंसर. अदरवाइज मेरे देखो यहाँ पे मैंने एक बुक रखी है, राइट. दिस इज माय बुक, जहां पे चैप्टर वाइज तुम्हारी मार्किंग होती जाएगी. दैट -1 है ना. अगर 100 ओरल टेस्ट लूंगी 2-2 मिनट की, तो जिसने जवाब दिया उसको +1, नहीं दिया उसके नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो जाएंगे ओरल टेस्ट के. सो रीड ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी वर्ड. एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ या 5, इट कुड बी एनी, बट इसे लर्न बाय हार्ट कर लेना. गॉट इट अप टिल हियर? सो वी एंड आवर टुडेज मीटिंग ओवर हियर. और बाकी तो कल तुम लोगों ने कर लिया था मैथ साइंस में, है ना. क्या किया था? सेल्फी एंड ट्रू और फॉल्स 1 मिनट टेस्ट. हाँ, 1 मिनट का. तो फिर कुछ नया हम नहीं कर रहे उसमें, वही का वही वापस. सो यू हैव अंडरस्टूड, इट वाज जस्ट अ टेस्ट ऑफ बोथ द टीचर्स कि भाई थोड़ा हमें भी नहीं, अभी काफी कुछ नहीं आ रहा. एंड यू आर स्मार्टर देन अस. आई टोल्ड यू इन माय वॉइस मैसेज कि हमारे बच्चे हमसे एक कदम आगे हैं, शायद, शायद, मे बी. तो तुम सपोर्ट करोगे हमें कहीं पे अगर हम स्टॉप हो जाते हैं. ठीक है ना. सो व्हेन डू वी मीट नाउ? डे आफ्टर टुमारो. ठीक है, यस मैम. ओके. एंड ठीक है, तो आई एंड द लेक्चर टुडे ओवर हियर. होमवर्क बहुत कम है 24 घंटे में. 24 घंटे भी नहीं, 48 आवर्स के बाद तुम मुझे ये जवाब दोगे. हाँ बोलो, हु इज सेइंग? क्या हुआ नंदिश? नंदिश, व्हाट हैपेंड? एनी प्रॉब्लम? हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ नंदिश. कहाँ गया नंदिश? हाँ, आजा आजा आजा. सॉरी हो बेबी, सॉरी. वेयर इज रिश्वा बेबी? कहाँ गई? मैम 2 मिनट. जस्ट वेट ना बेबी, 1 मिनट. अभी तो ये लंबा चैप्टर है, 2 हफ्ते तो मिनिमम चल जाएगा हमारा. देखो, राजा राम मोहन रॉय एंड lot many things you will have to, and we will enjoy over here, right. ये 3 क्वेश्चन आएंगे, ऐसे बीच बीच में क्वेश्चन आते जाएंगे, where we are going to enjoy a lot. You can read a page ahead in your homework. Hi, how are you? How are you? ठीक हो रिश्वा? हाँ ठीक हूँ. ओके. सेकेंड ईयर में आ गई कि थर्ड ईयर में? 3rd ईयर स्टार्ट हुआ, 2nd ईयर अभी माय खत्म. माय, कितनी बड़ी हो गई बेबी. ओ गॉड, थर्ड ईयर. गुड, वेरी नाइस. और ये गोलू गोलू भी तुम्हारे जैसा ही है, मस्त एकदम. हाँ, मेरे हाँ. पे ही हुआ. पर मेरे से खबर पता नहीं क्या होगा वो. नहीं नहीं, अच्छा होगा. बहुत परेशान करता है ऐसे पूरा तो दिन. मेरी ओर से तो झापट मार दो, मस्त एकदम. लड़के को हम मार सकते हैं, लड़कियों को नहीं मारेंगे, है ना. ये देख नंदिश, तेरी बहन को पता है श्री इंस्टीट्यूट का रूल. हाँ मैंने बताया, इसीलिए मैंने तो मम्मी को पहले से ही बोला था. हाँ, चलो. सो वी मीट, राइट. बाय. बाय ऑल ऑफ यू. बाय बाय. बाय बाय मैम. बाय मैम. बाय. बाय मैम. हु इज दैट वन? ये कौन था बदमाश? युग. આવી બન્યું. હવે મસ્ત મજા देखो नेक्स्ट लेक्चर में. बड़ा सा होमवर्क, बड़ा होमवर्क दूंगी, पनिशमेंट. बाय.